So welcome to all of you on the Advanced Grammar Day, and today's topic is the causative verbs. But before starting causative verbs, we should know कि what is the need of this topic. Okay? देखो, there are the two types of sentences in the English grammar. First sentence in which the subject is doing that action. Right? एक sentence कैसा होगा जिसमें subject is doing that action. And the second sentence is that subject is not doing that action. Subject is the cause of that action. Are you getting it? Subject makes others to do something. Yes, subject makes others to do something. So it means जो subject जो है that becomes a cause for that action. So जो cause से ही हमारा introduce हुआ है causative verbs. So when the subject is doing that action, then you can simply make the sentences by using the action verbs. Like for example, मेरी मम्मी खाना बनाती है. You can simply construct this sentence into English. My mother cooks food, because in this sentence, my mother is the subject and she is doing that work. So यहाँ पर जो cooks है, that is an Action verb. action. Action verb. But अगर सेंटेंस होता मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती है, so if you see in this sentence the subject is not doing that work, mother is not doing that work, mother is a cause क्योंकि वो किसी और से वो काम करवा रही है. So ऐसे sentences में जो हम verbs use करते हैं, these verbs are called the causative verbs. When these verbs becomes a cause मतलब कारण बन जाता. तो हमारी कौन सी है 5 causative verbs? Write down. Let, make, Have, get, Get. have, and help. I'm writing in the chat box. Let, get, have, make, and help. These are all the 5 causative verbs. Okay, so we should have the good knowledge of these 5 causative verbs. Once we know how to use all these 5 causative verbs, so we can easily make the sentences in which the subject is not doing that work, the subject is the cause of doing that. Clear? The topic is clear. Why we are going to discuss? Suppose अगर sentence में बोलती हूँ मैं हंसता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगे? I love. I'm laughing. I laugh. मैं हंसता हूँ, सिंपल I laugh. ठीक है? मैंने उसे हंसाया. देखो डिफरेंस देखो. मैं हंसता हूँ I the subject is doing that work. Work क्या है? हंसने का. So subject is doing that work, so you easily construct. But मैंने उसे हंसाया. I make him laugh. I make him laugh. मैं डांस करती हूँ, इंद्रानी. बनाओ इसकी इंग्लिश. Yes. I dance. मैंने उसे डांस सिखाया. I make make her him to dance. learn dance. I make I her have done- to learn dance. To learn I dance. make her to learn dance. To learn the dance. Although these sentences are little tricky to speak because we are not in touch. But trust me, if you know the rules, if you know... Or I help her to learn dance. I helped her is also okay. I help her is also okay. Okay. So there are some rules you have to understand. You have to cram that rules. Chale start kare? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So causative verbs. The causative verbs are the verbs that are used. The screen is visible, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So I will share the whole PDF. Okay. So no need to write anything. The causative verbs are the verbs that are used to indicate that one person causes another person to do something. One can cause somebody to do something by asking, paying, requesting or forcing the person. तो इन केसेस में हम causative verbs यूज करते हैं, कुछ ask करते हैं, pay करते हैं, request करते हैं या force करते हैं. So these are the 5 main causative verbs. Let, make, get, have. Now we will discuss one by one. First start with let. Where the let is used. The let is used to allow someone to do something. Let is used to allow someone to do something. जब हम किसी को allow करते हैं कुछ करने के लिए.
when we allow something to do something, in that case, we use the let. Now, in the red color box, you just see the rule of this sentence, ki how to create the let sentences. सबसे पहले you have to start with subject, then let, then person, then V1, then object. This is a structure of let making sentences. Like for example, John ने मुझे अपनी नई कार चलाने दी. जॉन ने मुझे अपनी नई कार चलाने दी, मतलब जॉन ने मुझे अलाउ करा कार चलाने के लिए. तो जब भी whenever the word allow is coming, so you have to take the help of which causative verb? Let. तो कैसे बनाएंगे? John let me, John let. John के John is a subject, subject आ गया. Then you have to put let. Then you have to put person. पर्सन क्या है? मुझे. किसे चलाने दी? मुझे चलाने दी. तो मुझे की इंग्लिश क्या बनाओगे? ड्राइव. देन यू हैव टू पुट V1. V1 क्या हो जाएगा? ड्राइव. एंड देन यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट हिज न्यू कार. सो जॉन लेट मी ड्राइव हिज न्यू कार. अब यहाँ पर लेट कौन सा फॉर्म है? ये लेट जो पॉजिटिव वर्ब्स है, दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. यहाँ पर चलाने दी मतलब डेट वॉज अ पास्ट टेंस, तो इसलिए यहाँ पर लेट आया है. लेट लेट लेट. और अगर ये होता सेंटेंस जॉन मुझे अपनी नई कार चलाने देता है, तो सेंटेंस होता जॉन लेट्स मी. जॉन लेट्स मी ड्राइव हिज न्यू कार. सेंटेंस होता जॉन मुझे अपनी नई कार चलाने देगा. फ्यूचर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? जॉन विल let me drive his new. Clear? तो Yes. So the causative verbs changes according to the tenses. Clear everyone? Mr. Lohit, is it Yes. clear? Yes, ma'am. Okay. Why I'm asking? Because I have made some sentences for your practice. So that's why I'm saying. Okay. ये हिंदी में भी लिखा है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पार्टी में जाने देंगे? ठीक है. सो अलाउ करेंगे मतलब क्या आपके पापा आपको पार्टी में अलाउ करेंगे. सो यू कैन ऑल्सो मेक इन दिस विल योर फादर अलाउ यू बी इज ऑल्सो ओके. अलाउ यू बी इज ऑल्सो ओके और लेट यू बी इज ऑल्सो. बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. विल योर फादर लेट यू गो टू द पार्टी और विल योर फादर अलाउ यू गो टू द ऑफिस. अलाउ जो है, that was obsolete verbs. Nowadays, we are not using that verb. Allow is a very basic verb. Okay? But instead of allow, Formal. Yes? Formal. Ruby, you are asking something? Yes, ma'am. हाँ, बोलो. I'm asking allow formal word. नहीं, फॉर्मल तो नहीं होता. अलाउ इज एन ऑब्सोलीट वर्ब. बहुत बेसिक वर्ब है. Very basic verb. So instead of using allow, if you use this let, so that is in a more better way. Otherwise, allow is also okay. मुझे नहीं पता मेरा बॉस मुझे छुट्टी देगा या नहीं. चलो ये थोड़ा सा टफ है, इसको नहीं देखते, ये वाला देखते हैं आज. उसे खुद फैसला लेने दो. उसे खुद फैसला लेने दो. Let him take the decision himself. Let him take the decision himself. वो मुझे घर जाने देता है. वो मुझे घर जाने देता है. He, then आपको पुट करना है let, लेकिन ये प्रेजेंट में है, so then you have to put let's. किसे घर जाने देता है? मुझे. मुझे की इंग्लिश आ गई me go home. He lets me go home. मेरे बॉस मुझे जल्दी घर नहीं जाने देते. क्या बनाओगे इसकी इंग्लिश? My boss doesn't let me to go home. My boss doesn't let me go home go home early. early. Very good. My boss doesn't let me go home early. वो मुझे घर नहीं जाने देता. He doesn't let me go home. बच्चों को सोने दो. Let the baby sleep. Let the baby sleep. मुझे अपना काम करने दो. मंजू, मुझे अपना काम करने दो. Let me do the work. Let me do my work. Let me do my work. Let me do my work.
उसने मुझे हमेशा वो करने के लिए कहा है, जो मुझे थोड़ा सा मैंने एडवांस ज्यादा लिख दिए हैं, जो समझ आ रहा है वो देख लो, नहीं तो मेरे पास आई हैव रिटन सम मोर सेंटेंसेस फॉर यू। एक बार इसको रीड करके देखो इन सेंटेंसेस को। जो मैं माँ ना कल मुझे मेरी what I want. कल मुझे मेरी मम्मी ने कल मुझे अपना मोबाइल लेने दिया। देखो एक सेंटेंस हो सकता था यहाँ पर, मैंने अपनी मम्मी का मोबाइल लिया, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? भगवती, मैंने अपनी मम्मी का मोबाइल लिया। Yeah. I take my mother's mobile. आई लिया, लिया, आई टुक, I took ठीक है, it. आई टुक माई मॉम्स मोबाइल। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है, बिकॉज इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज डूइंग दैट वर्क। लेकिन सेंटेंस होता मेरी मम्मी ने कल मुझे अपना मोबाइल लेने दिया। सो ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ लेट। माई मदर लेट मी टेक हर मोबाइल yesterday. ओके, माई मदर लेट मी। अब ये देखो, ऑल्दो इट इज कमिंग इनटू योर माइंड कि दिस इज अ पास्ट टेंस, तो Yes, ma'am. मैम यहाँ पर आपने टेक क्यों लिख दिया? ठीक है, देखो आपका जो चेंज होगा ना वो होगा पॉजिटिव वर्ब के अंदर चेंजेस होगा। लेट का देखो, लेट का देखो रूल, देखो लेट का रूल क्या है? व्हाट इज अ लेट रूल? लेट का रूल है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस V1। वॉट एवर द टेंस इट इज, आपको V1 ही पुट करना है। जस्ट मेक द चेंजेस इन लेट। तो लेट का सेकेंड फॉर्म भी क्या होता है? लेट ही होता है सेकेंड फॉर्म। ओके, यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म आया हुआ है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होता तो यहाँ पर लेट्स आता। ओके, so my mother let me, then you have to put V1। V1. क्लियर अगर है? प्रेजेंट होता तो एस्टरडे भी चले जाता ना मैम। क्या क्या कहते हैं पद्मा? सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ हाँ, बोलो बोलो। माय मदर लेट मी टेक हर मोबाइल, एस्टरडे को निकालना पड़ेगा। हाँ, फिर yesterday निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर तो yesterday लगी क्या, सो इट्स अंडरस्टूड इट्स अ पास्ट टेंस। बट यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि टेक क्यों आया, टुक क्यों नहीं आया? बिकॉज जो हमारे को पास्ट टेंस बनाना है, द चेंजेस ओनली हैपन इन द पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव। क्लियर? एनी डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. दो कुछ सेंटेंसेस दो हिंदी में, जस्ट ट्राई। फर्स्ट राइट डाउन। ओके, मेरे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। मैंने उसे लंदन, मिस्टर लोहित एंड इंद्रानी, कैन यू राइट दीज सेंटेंसेस? Yes, sir. ओके, मैंने उसे लंदन जाने दिया। पहले लिखो, देन आई विल गिव यू द टाइम। मैंने उसे लंदन जाने दिया। सेकेंड सेंटेंस, उसने मुझे कार चलाने दी। नेक्स्ट, डॉली ने कनिका को डांस क्लास ज्वाइन करने दी। नेक्स्ट, टीचर ने बच्चों को क्लास में डांस और म्यूजिक करवाया। मैम बिफोर डॉली ने कनिका को डांस क्लास ज्वाइन करने दिया। हाँ, ज्वाइन करने दिया। नेक्स्ट है, टीचर ने बच्चों को डांस और म्यूजिक क्लास में करवाया। पहले तो सबसे पहले देखो ये सेंटेंसेस कौन से लग रहे हैं, विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू आर थिंकिंग अबाउट? टीचर ने बच्चे को क्लास में डांस एंड म्यूजिक करवाया। डांस, देखो ऑल आर पास्ट टेंस मैम, ऑल आर नहीं, देखो सब साथ ये में। पॉजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस लग रहे हैं, वेदर इट सीम्स Yes. लाइक अ हाँ हाँ, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। वाई देखो, अगर सेंटेंस होता, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, टीचर ने बच्चों को क्लास में डांस और म्यूजिक करवाया। अगर ये आपको सिंपल वाला बनाना था तो इसके तब क्या बनाते हैं इसको? टीचर ने बच्चों को डांस सिखाया। टीचर ने बच्चों को डांस
सिखाया। या फिर आप ये भी बता सकते थे सिंपल, टीचर ने क्लास के अंदर डांस किया। टीचर ने क्लास के अंदर डांस किया, बिकॉज इन दैट केस द टीचर इज डूइंग दैट एक्शन. हाँ. But in this case, the teacher is not doing Not that doing that action. Teacher becomes a cause for Hmm. doing that action. So if the teacher becomes the cause, so you have to construct this sentence by using the causative. Positive. एक और सेंटेंस लेके चलते हैं, मैंने उसे लंदन जाने दिया. ये दे दिया. First one was this. हाँ, First one was this. मैंने उसे लंदन Over, जाना. ma'am. Over. ये Serial number 1. पॉजिटिव है मंजू, ये पॉजिटिव वर्ब है. No, no. You have already told this one ना. First one यही था मैम. मैंने उसे लंदन जाना. हाँ, नहीं नहीं, यही कह रही हूँ. I'm just asking whether this is of the Okay, positive verbs or not. Okay, okay. पहले ना, पहले क्योंकि ब्रेन में ये रखो कि कब पॉजिटिव वर्ब्स होंगे और कब हमारे सिंपल सेंटेंसेस होंगे. देन यू कैन इजीली गेट. अदरवाइज तो रूल्स दे दूंगी, उससे इंग्लिश ट्रांसलेशन तो बड़े आसानी से कर लोगे. दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. These are all positive verb, ma'am. ओके, इंदिरा ने अगर सेंटेंस है मैंने उसे लंदन जाने दिया, ये पॉजिटिव Yes, because I am allowing him to. हाँ, और अगर इसको तुम सिंपल उसमें बनाते तो क्या होता फिर? ये वो लंदन गए. वो लंदन लंदन- गया या फिर मैं लंदन मैं गया? लंदन गया. हाँ, मैं लंदन गया, क्योंकि वहां पर लंदन गए. सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर. Yes. Very good. Now, just I'm giving you the time. Just quickly convert these sentences into let causative verbs. Let. देखो, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या होती है? Writing. राइट. Right. लिखवाना, लिखवाने की इंग्लिश क्या होती है? Return. हाँ, रिटर्न. रिटर्न नहीं होती लिखवाने की इंग्लिश. मैंने ये लेटर लिखी, आई रोट दिस लेटर. सिंपल. मैंने ये लेटर लिखवाई, यहाँ पर अटकते हो. मैम पैसिव. है? Make him right. मेक हिम राइट. एक मिनट. तो लिखने की इंग्लिश होगी राइट, लिखवाने की इंग्लिश होगी मेक राइट. तो ये चीजें है ना, ये माइंड के अंदर रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ हम अटकते हैं. हम इसकी इंग्लिश पता है कैसे बनाएंगे? मैंने लेटर लिखवाया, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम. हम हर उसको पैसिव वॉइस में जोड़ते हैं, बट दिस इज रॉन्ग. ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है सेंटेंस. चलो बनाओ, फर्स्ट बनाओ. मैंने उसे लंदन जाने दिया. I let him to go London. I let him Let I him let him Go to I let London. him to go London. go to London. I let him go to London. I let him go to London. Very good. और इसके साथ साथ सिंपल वाले भी बनाओ. मैं लंदन गया, इसकी क्या बनाओगे? I went I London. went I London. went to London. I went to I London. went to London. Okay, next. उसने मुझे कार चलाने दी. He He let let me me drive a car. He let me. Okay, Drive Mr. the Lohit. car. Mr. Lohit. Yes. Yes. He let me drive a car. He let me drive a car. He let me drive a car. Yes. Very good. Mr. Lohit, उसने मुझे शेर पकड़ने दिया. Repeat, madam. उसने मुझे शेर पकड़ने दिया. He let him catch the He let me catch the tiger. हाँ. He let me catch the tiger. जो भी है. ठीक है. Next. इंद्रानी, डॉली ने कनिका को डांस क्लास ज्वाइन करने दी. Dolly let Kanika to join the dance class. नहीं, टू नहीं आएगा. लेट वाले सेंटेंसेस में टू नहीं आता. V1 से पहले टू अच्छा, नहीं let आता. Kanika join the dance class. Yes. Dolly let Kanika join the dance class. Although देखो at the time of speaking जरा बोल के देखो ये sentence. Speak this sentence. Dolly let Kanika Join the class. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बोलने में ये sentences, इसलिए हम ये sentences बोलते ही बोलते नहीं. ही नहीं है. क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ क्या है कि कनिका allows,
या डॉली allows Kanika to join the class. मैंने वही लिखा we don't have the practice ना, तो Allow- we have to हाँ, join we the don't have the dance class. practice, क्योंकि हमारे माइंड में क्या है, सिर्फ हाँ। allow word. जब भी हम कोई परमिशन की बात करते हैं, हम allow word यूज कर देंगे, बस. अब मैंने वही लिखी भी थी हेलो लिखते भी हम वही हैं, बट तुम कहीं पर भी देखना, जैसे ही तुम्हारे को कहीं लेट वाले सेंटेंसेस दिखते हैं ना, एकदम से हमारा माइंड करता है वाओ यार व्हाट अ इंग्लिश, एक अलग लेवल आ जाता है. वेन एवर यू यूज द लेट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन योर स्पीकिंग, इन योर राइटिंग, योर कम्युनिकेशन विल गो हायर. ओके ओके, तो प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस से ही आएगा और कोई इसका शॉर्टकट नहीं. तो Next मैम one. करेक्ट सेंटेंस था डॉली लेट कनिका क्या है join वो the dance class. Join Join the dance class. हाँ, join the dance class. Dolly let Kanika join the dance class. अगर सेंटेंस ये होता, डॉली कनिका को डांस क्लास ज्वाइन करने देगी, तो क्या बनाओगे? Dolly will let Kanika join the dance ज्वाइन द क्लास. ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस. classes. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज टीचर ने बच्चों को क्लास में, रूबी, टीचर ने बच्चों को क्लास में डांस एंड म्यूजिक करवाया. टीचर, बोलो टीचर. Teacher let हाँ, Teacher let to the children dance and music. चिल्ड्रन, टीचर Teacher let let children to चिल्ड्रंस नहीं होता, देयर इज नो वर्ड चिल्ड्रंस. चिल्ड्रन, टीचर लेट चिल्ड्रन, learn the dance let and the नहीं, टू नहीं children आएगा. टू इज नॉट कमिंग वेन एवर वी आर यूजिंग द लेट Teacher let सेंटेंस. children dance and music. Let dance in the class. to Teacher dance let the children and dance in music. learn dance and music. Teacher let children dance and music in the class. Let the children Teacher let students dance and music in the class. children Teacher करो let वाला। students dance and music in the class. Teacher let, उसके बाद then you have to put the object, oh sorry, subject, and then you have to use V1 and then For V1 we have to write teach or do. yes, Manju. Teacher let children do dance and music in the class or teach dance and music or whatever. The teacher let children dance and music in the class. हाँ, ये भी कर सकते हैं, सिंपल. डांस एंड म्यूजिक, डांस एंड म्यूजिक को We Dance have and not sing. written. अच्छा. डांस एंड सिंग को हमने एज अ वर्ब की तरह यूज कर लिया. Okay. ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके. डू यू कैन ऑल्सो ओके, Okay. दैट इज परफेक्टली ओके. ठीक है, Okay. so let. So let is clear. Whenever we want to allow someone to do something. Next आता है आपका have. Have. Where you have to use have. Have we have to use to give someone the responsibility to something. To give someone the responsibility to something. When we are giving responsibility to someone to do something. Like for example. अच्छा, पहले इसका रूल देखो. रूल इसका रूल है subject plus have plus person plus V1 plus object. रूल ऑलमोस्ट सेम है. अगर let होता तो यहाँ पर let आ जाता. अभी have है तो यहाँ पर have आ. Subject plus have plus person plus V1 plus object. Have let a causative verbs where you have to use when we are talking about the responsibility. You just write down have dash करके लिख लो responsibility. Let dash करके लिख लो permission. जैसे ये वाला लेते हैं, सिंपल है. मैंने मैकेनिक से ब्रेक चेक करवाई. मैंने मैकेनिक से ब्रेक चेक करवाई. Now I'm giving the responsibility to the mechanic to check my brake. तो अब जब मैं I'm talking about the responsibility, so I have to take the which causative verb have, right? अब करवाए, ये कौन सा टेंस है? Past tense. तो have का past tense क्या होता है? Had.
तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई, देखो चेक, सब्जेक्ट इज आई, देन हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड, देन आई हैव टू यूज अ पर्सन। किससे चेक करवाए? मैकेनिक से, सो देन यू हैव टू यूज द पर्सन, देन यू हैव टू यूज V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो क्या इंग्लिश बनेगा इसका? आई हैड द मैकेनिक चेक द ब्रेक। देखने में लग रहा है पता नहीं कौन सी इंग्लिश है ये, बट दिस इज, सिंपल फॉर्म क्या होगा? अगर हम लोग नॉर्मल ये फॉर्म नहीं पता होगा तो इसको तो कैसे फिर भगवती फिर हम बनाते ही नहीं है, फिर हम सिंपल, हाँ हाँ फिर हम क्या, हम गलत इंग्लिश बनाएंगे इसकी हमेशा। हाँ ऑलवेज हम पता है क्या बनाएंगे? आई चेक्ड द ब्रेक्स बाय मैकेनिक, आई चेक्ड द ब्रेक्स बाय मैकेनिक। तो sometimes you have to think much more कि क्या बोले नहीं, हम हिंदी में ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी हाँ। नेटिव लैंग्वेज में ऐसे हाँ। सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज करते हैं। You're right, यार 100%. सब no mother tongue several times you use this kind of sentence but when it comes to in English then definitely our हाँ, mind क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टक इन दीज टाइप्स ऑफ हाँ, सेंटेंस। Exactly. ट्रस्ट मी, कभी खुद सोच के देखना, मैंने घर पेंट किया, बनाओ जरा इसकी इंग्लिश। I painted the house. आई पेंटेड माई हाउस, सिंपल। मैंने एशियन पेंट्स वालों से अपना घर, सपोज करो मंजू और भगवती बात कर रहे हैं, मंजू भगवती को कह रही है यार मैंने ना एशियन पेंट्स वालों से अपना घर पेंट करवाया। and definitely I painted my house by हाँ, आई पेंटेड माई हाउस बाय एशियन पेंट्स, हम ये Right. बना देंगे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, Yes, आई yes. पेंटेड माई हाउस बाय एशियन पेंट, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। I तो always got confusing. मैंने अपने बाल कटवाए, इसमें मैं हाँ। हमेशा सोचती थी कैसे कटवाए। कैसे? अगर ये होता ना मैंने अपने बाल काटे, आई कट हाँ, माई हेयर, बिल्कुल हाँ, ठीक है, हाँ, बट हाँ। मैंने अपने बाल कटवाए, बिल्कुल उसका एंटायरली I डिफरेंट। always got confused. What should I write in this तो time? ये है पॉजिटिव वर्ब्स, okay ठीक है। और देखते हैं हम सेंटेंस। उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से रिपेयर करवाया, उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से रिपेयर करवाया। अब पास्ट टेंस है तो हैव का क्या आ जाएगा? हैड। ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल, he had a mechanic repair his mobile, although it is coming into your mind, अच्छा यहाँ पर had आ गया तो repair का क्या बना देंगे आप? Repaired. repaired। Verb की first form is there. हाँ, लेकिन always keep this thing, whenever we talk about the causative verb we always use the V1, only make the changes in causative forms। कृपया अपनी कंपनी से किसी से मुझे कॉल करवा दीजिएगा। नाउ आई एम गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसमें ना गाइज यू हैव टू थिंक कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग द परमिशन, अब यहाँ पर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि प्लीज कंपनी से मुझे कॉल करवा दीजिएगा। तो आप क्या बनाएंगे? प्लीज हैव समवन कॉल मी फ्रॉम योर कंपनी, प्लीज हैव समवन कॉल मी, प्लीज हैव समवन। अब देखो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो सीधा आप यहाँ से हैव से स्टार्ट करो, हैव एंड देन यू हैव टू यूज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसी से। ऑब्जेक्ट क्या है? किसी से। सो यू हैव टू यूज समवन, देन आपको V1 यूज करना है। V1 क्या है? कॉल करवाना, तो उसके लिए क्या आ गया? कॉल मी फ्रॉम योर कंपनी, प्लीज हैव समवन कॉल मी फ्रॉम योर कंपनी। चलो Someone is, it will be person, not object. Someone. someone is a person, someone is a person, object है from your From company। your company. हाँ, क्योंकि देखो रूल क्या है? व्हाट इज द रूल? रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन। whenever we are talking about the responsibility, मैंने अच्छा चलो मैं अब शो नहीं कर रही, इट इज नॉट विजिबल ना, राइट ऑन। मैंने पद्मा हाँ, सो सॉरी, मेरे को पता है डिनर कर रहे हो लेकिन स्टिल आई एम आस्किंग। मैंने इलेक्ट्रिशियन से अपनी ट्यूबलाइट ठीक करवाई। It's not dinner, ma'am. It is a medicine. इट्स अ Medicine for coughing. इतनी बड़ी मेडिसिन? I am doing it. भाई अभी से इतनी मेडिसिन। Ayurvedic for coughing only. Cough. अच्छा आयुर्वेदिक है। अच्छा चलो पद्मा ये बनाओ, मैंने इलेक्ट्रिशियन से अपनी ट्यूबलाइट ठीक करवाई।
I made. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, तो I रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, आई हैड, I had let the mechanic. आई हैड नहीं, इलेक्ट्रीशियन, आई हैड इलेक्ट्रीशियन, I had electrician to repair my house. Repair my house. हाँ, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, Repair टू my इज नॉट कमिंग, टू इज नॉट कमिंग, ओके। और अगर ये होता मैं इलेक्ट्रीशियन से ट्यूबलाइट ठीक करवाऊंगा, सो आई विल हैव एन इलेक्ट्रीशियन फिक्स माई ट्यूब। इंद्रानी, वन सेंटेंस फ्रॉम योर एंड, कोई भी दिमाग में सोचो सेंटेंस। जैसे यही सेंटेंस है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं। मैं आज शाम को अपने एम्प्लॉय से आपको फोन करवाऊंगा, या सपोज करो आपके किसी हस्बैंड के फ्रेंड का फोन आ गया, तो अगर आपने फोन पिक करा तो हम बोल देते हैं ना, मैं आपको हस्बैंड से फोन करवा दूंगी, या मैं आज शाम को अपने एम्प्लॉय से आपको कॉल करवाऊंगा। सो कैसे बनाओगे, करवाऊंगा फ्यूचर है, आई विल हैव अपने एम्प्लॉय की इंग्लिश क्या होगी, माई एम्प्लॉय, आई विल हैव माई एम्प्लॉय कॉल यू इन टुडे। ठीक है, मैंने बनाए हैं, एक मिनट। I will have prepare dinner for my guest. आई विल हैव, Prepare dinner for my guest. मैं अपने गेस्ट के लिए डिनर प्रिपेयर करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। करवाऊंगी, फिर ये हो गया करवाऊंगी, ठीक है। आई विल हैव, prepare my Prepare. dinner. नहीं, आई विल हैव प्रिपेयर थोड़ी आएगा, Prepared. Have prepared. नहीं, No, that Some no, other no, no prepared. पर्सन Prepare. का है, पर्सन। हाँ, I will have prepared dinner for my guest. नहीं, इंद्रानी, I will- देखो, रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस हैव Person, not subject. I will have I will have what will be the person that time, ma'am? I had my daughter wash the clothes. मैंने अपनी बेटी से कपड़े धुलवाए। क्या बनाया है, आई Had my daughter wash the clothes. I had my daughter wash the clothes. मैंने Absolutely अपनी right. बेटी से कपड़े धुलवाए। Why? I had my daughter wash the clothes. Absolutely right. लेकिन इंद्रानी, आपका सेंटेंस क्या था अभी, वो क्यू में है सेंटेंस। I will have नहीं, हिंदी में person क्या what था? हिंदी में क्या था इंद्रानी? I will prepare my dinner for my guest. मतलब आप मैं guest अपने के लिए गेस्ट के लिए डिनर प्रिपेयर करवाऊंगी। ठीक है, करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसमें सब पर्सन नहीं है, इसमें देयर इज नो पर्सन, सो यू कैन रिमूव द पर्सन। नाउ मेक इट, आई विल हैव, Prepared dinner for my guest. yes, this is also okay, I will have prepared dinner for my guest. ये होगा मैम, अगर चेफ लगाएंगे तो पर्सन की जगह I Ma'am, will ये- have chef cook the dinner. I will have chef cook the dinner. Cook the dinner. हाँ, या prepare the dinner is also. मैं शेफ से खाना बनवाऊंगी, मैं अपने गेस्ट के लिए शेफ से खाना बनवाऊंगी, सो आई विल हैव शेफ प्रिपेयर द डिनर फॉर माय गेस्ट। That is all. देखो, आई एम अगेन रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम्स, दीज सेंटेंसेस आर टफ टू स्पीक, मैम बट क्या ये बोल सकती थी आई हैड ऑफिशियल मीटिंग ट्रांसफर माय क्वार्टर? नहीं, आई हैड ऑफिशियल मीटिंग, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है ना, मैं ऑफिशियल मीटिंग रखती थी। आपको हैव के बाद आपको पर्सन यूज करना है भगवती। देखो, अगर आप सिंपल वाले सेंटेंसेस बनाते हैं ना, उसमें हैड के बाद आपका वर्ब आ जाता है या ऑब्जेक्ट आ जाता है, यहाँ पर हैव के बाद आपका पर्सन आना चाहिए।
हिंदी में क्या बनाना चाहते हो? हिंदी में बताओ मुझे। मैम वही कंफ्यूजन हो गया था कि वो पर्सन ही होगा कि वो पर्सन आपको यूज करना है, कॉजेटिव वर्ब्स के बाद द पर्सन विल कम, द पर्सन विल। मैम, हाँ, यस रूबी। I will have arranged the meeting by my staff. बाय नहीं आएगा रूबी, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। पॉजिटिव वर्ब्स में बाय नहीं आता। पैसिव वॉइस आई Only थिंक। वो पैसिव वॉइस है जहां पर बाय आता है। I had my haircut by my stylist. By the stylist. I I had my haircut बाई नहीं आता, बाई नहीं आता। बाय नहीं आता by ना the, इंद्रानी। by the stylist. Oh, I had my stylist cut the hair. हाँ, I had my stylist या hair stylist cut Cut the the hair. hair. at the please hair. please have someone drop me from my office. क्या बोल रहे थे? Please drop Please have someone drop me from my office. नहीं, हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हो? कि कोई मुझे ऑफिस से ड्रॉप कर दीजिए सर, ऐसा किसी से हेल्प मांग के जब ड्रॉप करवा दे, उसमें वो हाँ, करवा दे, हाँ, करवा दे, करवा उसमें वो दे। खुद नहीं करेगा, भगवती खुद करवा नहीं दे। करेगा, वो किसी से करवाएगा। करवा दे। ओके, Please have someone drop me to the office. ठीक है, ओके। Please have someone drop me to the office. देखो ये क्या है, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करूंगे तभी। आज मैं बहुत सारे पांचों आई विल नॉट टेक इन टुडे सेशन, आई विल टेक ओनली 3। अब लास्ट में एक ले रही हूँ मेक, आई एम ऑल्सो टेकिंग मेक। गेट एंड हेल्प वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। But what you have to do, you have to make at least 10 sentences. Then it will retain into your mind. Otherwise, पता mind क्या कहेगा? Oh my God, it's a very tough. Leave it ना, direct वो आ ही नहीं रहा है। हाँ जितना बाइबल। सुनते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक भी नहीं आ रहा। नहीं आएगा, आएगा, अभी मैंने और लिखे नहीं है। अच्छा, जैसे इसका, हाँ चलो कुछ सेंटेंसेस हैं, चलो हिंदी में मैंने लिखे थे यहाँ सेंटेंसेस, पहले में कुछ सेंटेंस है। चलो अब मैं मिक्स बोल रही हूँ, थोड़ा सा सोचना कि कौन सा बनेगा। अभी हमने सिर्फ 2 करे हैं, लेट और हैव वाले सेंटेंसेस करें। ओके, वो मुझे घर जाने देता है, लिखो पहले, वो मुझे घर जाने देता है। वो मुझे घर जाने देता है, क्या बनाओगे इसका? Let me. हाँ, he, yes, He Mr. let, Lohit. he let जाने देता है। Mr. Lohit, your voice is not coming. he let me to go home. Very good, very good. He lets me, देता है, he lets me go. Go to नहीं, he lets me go home. Simple. He lets me go home. He lets me go home. रूबी, वह मुझे सोने देता है, वह मुझे सोने देता है, क्या बनाओगे? He lets me sleep. Very good. He lets me sleep. He lets me sleep. वह मुझे पार्टी करने देता है, भगवती, वह मुझे पार्टी करने देता है। He lets me do party. टू नहीं आएगा। He Do lets, do. अच्छा हाँ, he lets me do party. Very good. He lets me do party. He lets me do party. इंद्रानी, वह मुझे डांस करने देता है। He lets me dance. He lets me dance. He lets me dance. Ma'am, with the English, me and Rahit learning Hindi also. Actually, no, this is my way ना कि This is the I additional subject of language we are learning. Right. Actually, क्या करूँ ना, वो native language है ना, तो I always come to this translation method ना. That Otherwise is good ना, for us. हाँ. Otherwise क्या होता है ना, although Indrani we don't follow this concept into IDQ, Hindi to English translation. Sir always say कि English to English. ठीक है, लेकिन ठीक है, नहीं, समझ मैम। आना चाहिए, देखो समझ आना चाहिए।
मैम सुनिए, Yes. ये जो कार्तिक सर फोन जो क्लास लेते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि बीच बीच में हिंदी बोलने से अच्छा लगता है, कनेक्टिविटी है वो, और देखो सबकी अपनी कम्युनिकेशन अपनी है, लैंग्वेज है ना। कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन हम्म, सुनने में अच्छा लगता है। राइट 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 राइट। अच्छा चलो एक और बनाओ जरा। मेरे, अच्छा नहीं, अच्छा अभी मेक वाला तो मैंने करवाया ही नहीं ना, मैंने मेक वाले लिख दिए हैं। अच्छा लास्ट सेंटेंस थोड़ा सा लंबा लिखा है मैंने हिंदी में, जरा लिखना जरा इसको। उसने अपना मोबाइल, उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से रिपेयर नहीं करवाया, उसने खुद किया। अगेन आई रिपीट, उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से रिपेयर नहीं करवाया, उसने खुद किया। देखो कौन सा लग रहा है ये। वो हैव का जो फॉर्म है, हम्म, हैव का जो फॉर्म था सेकंड, हैव फॉर्म है, ठीक है बनाओ। he had not mechanics repair he his had mobile not mechanic he had not mechanic, repair his mobile हाँ, uh, उसने खुद किया। he did इसमें भी क्या वो सिंपल खुद की इंग्लिश क्या होती है, खुद की इंग्लिश बताओ। अगर ही है तो उसका by उसका himself by रिपेयर himself इटसेल्फ मैम, by himself himself इटसेल्फ, himself himself, he है तो हिमसेल्फ। himself, she होगा तो herself, they होगा तो themselves। वेरी गुड। he had not, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो नेगेटिव सेंटेंस में, इसको didn't have भी बोल सकते हो। okay he didn't have a mechanic repair his mobile, he himself did it। Padma, any one sentence of have, sorry, have. Indrani, Manju, any one sentence from let. Padma, Bhagwati, and Ruby, one sentence from have. Mr. Lohit, any one sentence from let. Then I will come to the next verb, make. Please have someone help me in the kitchen. Please help someone help me in the kitchen. हिंदी बताओ इसका पद्मा। Please have someone help me in the kitchen. हाँ, क्या हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हो? कोई मुझे किचन में हेल्प करेगा। कोई मुझे किचन में हेल्प करेगा, इसमें तो आप मुझे ही कह रहे हो ना। ये पॉजिटिव वर्ब्स की तरह यूज नहीं करा, ये सिंपल वर्ब की तरह यूज करा आपने। हाँ, कोई मुझे किचन में हेल्प करेगा, ठीक है ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग दैट वर्क ना, समवन एल्स इज डूइंग दैट वर्क। वेरी गुड पद्मा, एब्सोल्युटली राइट। प्लीज हैव समवन हेल्प मी हेल्प इन द किचन। वेरी गुड नेक्स्ट। सोचो क्या और बना सकते हो। मैम हम्म, someone have give me coffee. समवन से पहले हैव लगाना है। he did not have mentor guide him for the नहीं, he भगवती didn't स्पीक योर सेंटेंस प्रॉपरली।
He didn't have a mentor, guide him properly. He passed the exam by his own effort. हिंदी क्या है? पहले इसकी हिंदी बताओ, क्या बोलना चाह रहे हो? वो मतलब बहुत अच्छा गाइड। मैं बोलना चाहती थी कि उसके पास वो ये नहीं था। उसके पास मेंटर नहीं था, उसने ये एग्जाम खुद से पास किया है, ये सेंटेंस है। हाँ हाँ तो ये तो सिंपल हो गया ना, उसके पास मेंटर नहीं था, तो ये तो सेंटेंस सिंपल हो गया। अच्छा अच्छा हाँ सिंपल सेंटेंस है। He didn't have a mentor. Yes, Padma. क्या तुम I, मुझे I अपनी had कार the maid. एक I मिनट। had the maid complete my household chores. I had the maid Complete the household. Complete my household household chores. chores. क्या इसका हिंदी क्या हुआ पद्मा? मैंने अपनी मेड से घर का सारा काम करवाया। मैंने अपनी मेड से घर का सारा काम करवाया। I had my maid complete all household chores. Excellent. मंजू, क्या तुम मुझे अपनी कार चलाने दोगे? Will you हाँ। let me drive your car? Will you let me drive your car? Excellent. Will you let me drive your car? Yes. Any sentence, Indrani? My daughter doesn't let me go on a trip alone. My daughter Does not let me go on a trip alone. alone. Excellent. Excellent. Very nice. Very nice. I Mr. had carpenter repair my wooden showcase. I had a carpenter. हाँ, Carpenter. I had carpenter. Repair my wooden showcase. हाँ, बिल्कुल ठीक। मैंने कारपेंटर से अपना वुडन का जो भी काम था वो करवाया। Finally एक थोड़ा सा हाँ, I had my carpenter to do that. Repair. मैंने अपना घर एशियन पेंट से पेंट करवाया। बनाओ अब इसकी इंग्लिश। I had made Asian paint. I had के बाद क्या बोल रहे हो? I had Made. An Asian paint. Asian paint. हाँ, Asian paint. वो लगाओ ना, पर्सन लगाओ I ना। had Asian paints I to had paint Asian paint. Paint my house. paint my Yes, house. paint my house. I had Asian paints paint my house. We having our house painted this weekend. We are having our house Painted. Painted. Not right, no? हम इस साल अपना घर पेंट करवा रहे हैं। ये एक्चुअली ना इंद्रानी, Weekend में ये गेट वाला सेंटेंस है, ये गेट वाला सेंटेंस है, ये हैव वाला नहीं है, क्योंकि आप इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना ये वाली। या तो आप किसी का weekend नाम, में पेंट करवाऊंगी. हाँ, So then we are having our house. I will have, अब यहाँ पर वो तो है नहीं, पर्सन नहीं है। I will have No. My house. ये ना गेट वाला बनेगा, ये गेट वाला बनेगा, ये भी अच्छा, हम नेक्स्ट okay. क्लास में करेंगे। ये हैव वाला नहीं बनेगा। अच्छा, okay. नेक्स्ट आता है आपका मेक। मेक हम यूज करते हैं व्हेन वी आर डूइंग फोर्स समवन टू डू। जब हम किसी को फोर्स करते हैं उस काम को करने के लिए, सो देन वी हैव टू यूज दिस थर्ड कॉजेटिव वर्ब दैट इज कॉल्ड मेक। इसका पहले रूल देखो। रूल इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। Make me understand. मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मेरी टीचर ने मुझसे माफी मंगवाई। मांगी नहीं है, अगर मांगी होता तो क्या बनाते हैं इसकी इंग्लिश? माई टीचर, Make. नहीं, माई टीचर एपोलोजाइज्ड। अगर टीचर ने माफी मांगी है तो क्या बनाते? माई टीचर एपोलोजाइज्ड। Apologize. ठीक है, फॉर व्हाट शी सेड। लेकिन यहाँ पर क्या है? टीचर ने माफी मंगवाई।
टीचर ने माफी मंगवाई, तो टीचर, अब ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन टीचर ने फोर्स करा, सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स, सो देन वी हैव टू यूज मेक। द टीचर मेड, किसको किसको मेड करा, किसको मुझसे मुझसे मंगवाया, मैं- मुझसे, Me, तो आप यूज करेंगे मी, देन यू हैव टू यूज V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। My teacher made me apologize for what I said. सबसे ज्यादा यूज होता है make, let and get। ये 3 कॉजेटिव वर्ब सबसे ज्यादा यूज होते हैं, make, let and get। 5 में से अगर 3 के ऊपर भी परफेक्शन कर लिया तो हमारा काम हो गया, ठीक है, लेकिन वो 3 के ऊपर फिर 100% परफेक्शन होना चाहिए। उसने अपने बच्चों पर उसने अपने बच्चों से उनका होमवर्क करवाया, उसने अपने बच्चों से उनका होमवर्क करवाया, अब उसने खुद नहीं करा, उसने अपने बच्चों से करवाया। और होमवर्क करवाने के लिए यू हैव टू फोर्स समवन, सो कैसे बनाओगे, शी मेड हर चिल्ड्रन टू डू, सॉरी तू नहीं हाँ, डू नहीं, she made her children do their homework, she made her She children made her children to do their their homework। homework. हाँ, अपना कार्य। excuse me मैम, यस पद्मा, इसमें फ्यूचर नहीं आएगा ना, मेक, मेड, फ्यूचर नहीं सेंटेंस नहीं होगा। नहीं, she will make भी आ सकता है। That She will देखो, make her positive children verb, हाँ, do positive verb changes according to the tenses। their मैंने विवेक को क्लासरूम में वापस भिजवाया, एक सेंटेंस होता, मैंने विवेक को क्लासरूम में वापस भिजवाया, फोर्सफुली उसको वापस भिजवा दिया कि अब तुम जाओ, सो आई मेड विवेक गो बैक टू द क्लास। I made, then you have to use a person, then you have to use V1। I made Vivek go back to the class। मेरी मम्मी रोज मुझसे खाना बनवाती है, अगर सेंटेंस होता है मेरी मम्मी खाना बनाती है, माय मदर कुक्स फूड, बट मेरी मम्मी रोज मुझसे खाना बनवाती है, सो माय मदर मेक्स मी कुक फूड एवरी डे। फोर्स, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द, तुम, अब पता देखो आगे यहाँ पर, तुम मुझसे अपना होमवर्क करवा रहे हो, तुम मुझसे अपना होमवर्क करवा रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि भाई मेरा होमवर्क करो, तो करवा रहे हो, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, तो कैसे बनाओगे, यू आर मेकिंग मी डू योर, continue। तुम मेरा उल्लू बना रहे हो, बहुत टाइम हम यूज करते हैं ये सेंटेंस, कैसे बनाओगे, यू आर making Making me full. Make me fool. यू आर मेकिंग मी फूल, तुम मुझे रुला रहे हो, प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे रुला रहे हो, You are making Making me me cry। you are making me cry, you are making me cry, You are you making me laugh. हाँ, you are making me laugh, Laugh। you are making me laugh, तुम मुझे हंसा रहे हो, या तुम्हारे, हम बोलते हैं ना, जैसे तुम्हारे जोक्स मुझे हंसा रहे हैं, कैसे बनाओगे, You are making me laugh by your jokes. Through Your your तो jokes. बाय से making इतना me laugh। Your फंसी jokes जा रहा making है me ना, laugh. यहाँ your jokes Your jokes making me laugh. are Your jokes. Okay. Jokes are making me laugh. Yes. yes, Your your jokes jokes are making me are laugh. making me laugh, Your jokes. your jokes are making me laugh। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट यू ही हो सकता है, योर जोक्स भी हो सकता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे हंसा रहा है, बनाओ, Your sense of humor Are making me making me योर laugh. सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो सिंगुलर हो जाता है, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज मेकिंग मी making me laugh। लाफ, ठीक है, यह पिक्चर मुझे रुलाती है, This picture picture is made me laugh। Makes- Sorry, makes made me cry, cry, makes me yes, cry। this picture makes me cry, Makes me cry, so अच्छा। this picture makes me cry, cry। okay, Ruby, any sentence Yes, from your end? Make मैंने भावना को भिजवाया, मतलब उसको भिजवा दिया, वापस वो भेज दिया उसको,
I made Bhavna go. I made Bhavna go. I made Bhavna go back. हाँ, go back. Go back भी हो सकता है. Go back. I made Bhavna go back. देखने में लग रहा है पता नहीं क्या है, पर ये ऐसे सेंटेंसेस हम यूज नहीं करते. Ma'am, The her doctor, polite ma'am, behavior makes me feel so happy. Yes, Bhagwati, speak your sentence again. Her polite behavior makes me feel very happy. Her polite behavior makes me feel very happy. Very good. Very good. and the doctor made me out of the rooms. The doctor made me out from the room. Very good. डॉक्टर ने मुझे रूम से बाहर भिजवा दिया या भेज दिया भी ठीक है. नहीं, भिजवा दिया इसमें ना, वो अगर डॉक्टर ने भेजा होता तो वो होता. ओके. अच्छा, कुछ सेंटेंसेस मेक के दूं मैं? अच्छा चलो लिखो कुछ सेंटेंसेस मेक के. Ma'am, my grandmother made me clean the house after the party. My grandmother made me clean the house after the party. Very nice. Excellent sentence, because now here she's forcing her. She's forcing her. Mr. Lohit, any one sentence from your end? My friend made me go. My friend made me to learn good English. My friend made me. To learn good English. नहीं, टू नहीं आएगा. My friend made me learn good English. My friend made me learn good English. Learn good English. मैम इस सब में टू नहीं आएगा. मेक नहीं, हैव नहीं, नहीं, हेल्प नहीं. गेट लेट. जब get एक वर्ब है जिसके अंदर आप टू लगा सकते हैं. Get. Otherwise no. Will, ma'am, इसमें will भी use कर सकते हैं ना. Our too much materialistic love will make us selfish. Yes, yes, Bhagwati, speak your sentence. Our too much materialistic love will make us selfish ourselves. Our too much love will make us Materialistic love. Materialistic love. selfish. हमें बना देगा. But this is not acts as a causative verb ना. ये तो simple वाला sentence हो गया. मेटेरियलिस्टिक लव होता है जो फोर्स, मतलब खुद से नहीं हो. क्या बोलना चाहती हूँ, जब हम कोई काम फोर्सफुली आपसे करवाते हैं. हाँ मतलब ये मेरा इंटेंशन, हम लोग का इंटेंशन जो है, हम लोग बहुत ज्यादा कुछ जब डिजर्व करते हैं, कुछ होता है ना, ये चाहिए वो चाहिए, मेटेरियलिस्टिक थिंग. तो एक होता है कि इंटरनली हम लोग को फोर्सफुली खींचता है ना सेल्फिश हो जाने के लिए. नहीं, मतलब लेकिन इस सेंटेंस में तो ऐसा कोई है ही नहीं ना कि सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग दैट वर्क. जहां सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता ना, उस केसेस में हम पॉजिटिव वर्ब्स लगाते हैं. अदरवाइज मे कैन बी यूज्ड एज अ सिंपल वर्ब आल्सो, मे कैन बी यूज्ड एज अ पॉजिटिव वर्ब आल्सो. लेकिन आपको वो सेंस देखना है कि किस सेंस में ये पॉजिटिव वर्ब यूज हो रहा है, किस सेंस में ये सिंपल वर्ब यूज हो रहा है. जैसे कि बेड लगा लो, बेड लगा लो, मेक योर बेड. अब यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ब थोड़ी है, सिंपल है. बेड लगवाया उसमें हो जाएगा. हाँ, उसने मुझसे बेड लगवाया, इसकी बनाओ. He Made me हाँ, make My my bed. bed. yes, he made me make my bed. Excellent. He मैंने वो made. फॉर्म यूज नहीं की थी, वो जो सेंटेंस मैंने तब फ्यूचर यूज की थी, वो जो एक्चुअल फॉर्म था वो पर्सन इसमें नहीं था. हाँ, ठीक है. ठीक है. अब जैसे और कुछ सेंटेंस लिखो. उसने अपने हस्बैंड से कमरा साफ करवाया. उसने अपने हस्बैंड से कमरा साफ करवाया. लिखो पहले ये सेंटेंस. तुम उसे रुलाओगे. तुम उसे रुलाओगे. नेक्स्ट, वह उसे रुला चुका है.
वह उसे रुला चुका है। नेक्स्ट, तुमने उसे रुलाया था। तुमने उसे रुलाया था। नेक्स्ट, वह उसे 3 घंटे से रुला रहा है। वह उसे 3 घंटे से रुला रहा है। नेक्स्ट, तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो। तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो। नेक्स्ट, मेरी मम्मी रोज मुझसे खाना बनवाती है। मेरी मम्मी रोज मुझसे खाना बनवाती है। नेक्स्ट, मैं रोहन को हंसाता हूँ। मैं रोहन को हंसाता हूँ। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस, तुम्हें अपनी मम्मी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। तुम्हें अपनी मम्मी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। एंड द लास्ट इज, वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था। वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था। आई एम गिविंग यू 10 seconds टाइम। आई एम जस्ट गिविंग यू द एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना चेंज करके, वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था। आई एम गिविंग यू द हिंट, ऑल द सेंटेंसेस यू हैव टू मेक इन मेक। मेक, क्योंकि सारे सेंटेंसेस में देखना थोड़ा सा फोर्स वाला काम हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं है, कोई परमिशन वाला काम नहीं। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 20 seconds टाइम, जस्ट मेक ऑल द सेंटेंसेस, जस्ट ट्राई। भी जल्दी से, डू फास्ट। Ruby is in her own world. Hey, Ruby? Yes, ma'am. You are in your world. ना, I really like your chill behavior. कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैम, कोई बात नहीं, मुझे पेन अगर नहीं पेन चल खोलना है रहा तो था पेन ना भी खोलना। मैम, हाँ पेन से काली निकल गया और खत्म हो गया। हाँ, चलो बनाओ सारे सेंटेंसेस, जस्ट ट्राई। अगर ये सेंटेंसेस करेक्ट बना लिए ना, तो मतलब लगा लो कि बहुत बड़ा टास्क हमने अचीव कर लिया आज। मैम मैंने तो लिखा भी नहीं अभी तक। एक भी नहीं लिखा? हाँ, तू मुझसे रुलाया, उसने उसके हस्बैंड से काम करवाया। हाँ, साफ करवाए। एक और लिख लो बस, लास्ट वाला, मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। और एक और लिखो, तुम्हें अपनी मम्मी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। तुम्हें अपनी मम्मी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। चलो, आई एम गिविंग यू 20 seconds टाइम। मैम मैं उससे अपना काम करवाया। हाँ, मैंने उससे अपना काम करवाया। मैंने उससे अपना काम करवाया।
Sonali. I have completed, ma'am. मैम वो तुम उससे अपना होमवर्क लिखा रहे थे और लिखा रहे हो कुछ भी लिख लो आ रहे हो continuous में I have completed, ma'am. Shall I say the okay answer? okay yeah Padma just wait everyone will finish then we will start. Total 9 है ना, ma'am? 9. Excuse me, ma'am. टोटल 11 है 11 है. Done everyone? यस मैम no 9 नहीं है 2 और earlier one oh, You have done Manju? yes Okay. ma'am. Chalo, let's start from Padma then Manju. Padma, read the first sentence first in Hindi क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना मिक्स उससे मैंने दे दिए सारे सेंटेंस. Total कितने है, मैडम? 10 है, I 11 don't है. know पद्मा मैंने तो बस दे दिए रैंडमली. कोई बात नहीं जितने भी होंगे उतने हम करेंगे. पहले हिंदी में बोलना मुझे सेंटेंस क्या था. You made me cry. Actually, I didn't write Hindi version. अच्छा I you directly- didn't write. अच्छा क्या था सेंटेंस. तुम उससे रुलाओगे. तुम उसे रुलाओगे. You Make me cry. You will make me cry. will make him cry. Make me cry. हाँ, you will make me cry. तुम उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर हिम हो जाएगा. Him. You will make him cry. Him cry. अगर मुझे होता तो मी लगा देते. You will make me cry. अगर उसे है तो you will make him cry. नेक्स्ट सेंटेंस मंजू. वह उसे रुला चुका है हाँ वह उसे रुला चुका है. he has made him cry excellent he has made him cry. क्योंकि वो जो रुलाने का काम है वो हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट. So he has made him cry. नेक्स्ट सेंटेंस क्या था. तुमने उसे रुलाया था. You Okay. have You made him cry. You हाँ, made him you cry. made You made him You cry. made him cry. You made him cry. Okay. इंद्रानी वह उसे 3 घंटे से रुला रहा है. मैं आई me. हाँ he I make her Making. cry. वह making ma'am. I He making making her cry he crying for He is making. He is making. he ना me. मैं उससे ना. हाँ वह उसे 3 घंटे से रुला रहा है. अच्छा वह बना he. हाँ He is making her crying for last 3 hours. मंजू. he has been making him cry Yes he has present been. perfect He has been. क्योंकि He has टाइम been मेंशन हो making गया ना. her देखो टाइम मेंशन हो गया 3 हाँ घंटा. हाँ जैसे टाइम हाँ, मेंशन हो हाँ, गया हाँ. तो प्रेजेंट परफेक्ट Yes कॉन्टिन्यूअस yes आ yes. जाएगा. Past हाँ past. So he has been making him cry for 3 hours. ठीक है और बताओ और दूसरा सेंटेंस क्या था. तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो हाँ तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो. बनाओ. रूबी. Yes ma'am. अच्छा रूबी ये बनाया है सेंटेंस. तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो. नहीं. अच्छा ठीक है. भगवती. वो मैं लिख रही you are making her write your homework You are making me. मुझसे okay है ना. sorry you are हाँ. making me write Write your homework homework. You are making me. Do Write- your homework. write your- हाँ do your homework. Write your homework. Both are okay.
You are making me write your homework. You are making me do your. Very nice. Next. मेरी मम्मी रोज मुझसे खाना बनवाती है। हाँ, बनाओ। बना My- लिया। My हाँ, mom बनाओ, makes बोलो। me My My mother makes me cook food daily. food every day. Yes, my mother makes me cook food every Food day. every day. Because now she's forcing her. Because no one is interested to cook the food. So force. So my mother makes me cook the food every day. एक मैं सेंटेंस है रोहन को हंसाता हूँ. मैं रोहन को हंसाता हूँ। हाँ, बनाओ पद्मा। I make Rohan laugh. Yes, I make Rohan laugh. अब देखो ये सेंटेंस, मैं हंसता हूँ, I laugh. रोहन हंसता है, रोहन laughs. लेकिन सेंटेंस है, मैं रोहन को हंसाता I हूँ. makes Rohan's laugh. I make Rohan laugh. Laugh. I make Rohan laugh. तुम्हें अपने मम्मी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए. हाँ, You should not make your mom. You should not make your mom wash your clothes. excellent. Very nice. Very You nice, do not. Bhagwati. You do not make your mother to wash clothes. हाँ, यहाँ पर शुड नॉट भी ठीक है, डू नॉट भी ठीक है. ठीक है, बट लेकिन हमने यहाँ पर चाहिए के सेंस में थोड़ा सा एडवाइस फॉर्म में दे दिया था, तो शुड नॉट इज मोर अप्रोप्रिएट. यू शुड नॉट Make Make your mother make your wash. mother wash your clothes. You should not हाँ? make your mother कौन? wash your. ऐसे ही टीवी वाला को दो. Ruby, any one sentence from your end? नहीं मैम, मैंने तो लिखा नहीं, आपने बोलेंगे तो मैं बोलूंगी. आप One बनाओ, left. बनाओ. हाँ, One yes, left में वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था। हाँ, बनाओ मंजू. रूबी से मैम यू वर टेलिंग ना कि she was अच्छा, telling रूबी बनाओ सेंटेंस. वह वह मुझसे अपने वह कार अपनी चलवा कार रहा चलवा था. रहा हाँ, He makes me drive the car. He's drive. नहीं, he makes me drive the car तो हो गया, वह मुझसे अपनी कार चलवाता है. Let's मैम. No, ठीक है, लेट्स भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फोर्स कर रहे हो तो मेक्स कर दो. लेकिन यहाँ सेंटेंस क्या था, वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था. पास्ट कॉन्टिन्यूअस. Mad. he Mad. was He was was. making He was. me drive car. Yes, he was was- making me was drive car. drive. He was making me drive. Making me drive car. Any more sentences left? No ma'am, over. It's over. वह अपनी सिस्टर को रुलाता है. रूबी, वह अपनी सिस्टर को रुलाता है. He making नहीं, रुलाता है सिंपल. नहीं. हाँ, He make cry. नहीं, मेक के बाद लगाओ पर्सन. किसको He रुलाता है? make he make his sister cry. बस, cry. He makes her sister cry. He makes her sister cry. His sister ma'am, not her sister. हाँ, his He sister. makes his sister. हाँ, he makes his Makes sister his sister cry. cry. He makes his sister